Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to start a new topic which is your logical reasoning. Okay, so in this we'll start with the deductive and inductive reasoning, but before that we need to understand what is the structure of argument, right? So basically when we argue something, we support it with some evidences, some claims, some facts, right? So in this will there are basically in structure of argument there is premise 1, premise 2, and then there is your conclusion. There can be one premise and there can be more than one premises. So this will be your structure, basic structure of argument. In this, conclusion is an argument which you seek to establish, whereas premises are the facts, claims or evidence which is presented to support the conclusion. Right. Now let's take an example. Like there is a conclusion, Socrates is a mortal, right? So in order to back up this argument, I provided with the premises that all men are mortal and Socrates is a man. So क्योंकि सारे men mortal हैं and Socrates is also a man, so we can infer that Socrates is mortal. So this is what all about premises and the conclusion. So this is the basic understanding of basic structure of argument. One more thing in this, when we are talking about this structure, we need to understand there are basically three terms and they repeat twice, right? इसे ऐसे याद कर सकते हो 3 into 2. 3 टर्म्स होते हैं और ट्वाइसली रिपीट होते हैं, जैसे कि मैन मैन, मॉर्टल मॉर्टल, सॉक्रेट सॉक्रेट. तो ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 1, 2 और ये 3. ये 3 टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स 2 बार इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें मेजर, माइनर और मिडल टर्म का बहुत अहम रोल है. तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स कि 2 प्रेमाइसेस होती हैं, एक कंक्लूजन होता है, इसमें 3 टर्म्स हैं और वो ट्वाइसली रिपीट होती हैं. ठीक है, और इसमें जो 3 टर्म्स हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं इनके नाम क्या है? मेजर, माइनर और मिडल. ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, राइट, मैंने इस एग्जाम्पल की बात की, तो इसमें जो मेजर टर्म है, मेजर टर्म इज योर प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन. ठीक है, माइनर इज योर सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, whereas middle is present in both the premises, present in both the premises. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ ये P1 है, ये P2 है और ये कंक्लूजन है, तो दोनों प्रेमाइसेस में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? ये मैन, तो ये क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म. ठीक है, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं. ये सब्जेक्ट मानते हैं, सबसे पहला जो वर्ड होता है उसे सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया मेजर इज योर प्रेडिकेट, तो मॉर्टल क्या हो जाएगा आपका? मेजर. और माइनर क्या हो जाएगा आपका? सोक्रेटिस. ठीक है,
तो आई होप you have understood the concept of basic structure of argument, in which we have three terms which twicely repeats, and these three terms are named as major, minor and middle, right? Now you have the basic idea of basic structure of an argument. Now let's move forward to reasoning. Reasoning basically are of two types, deductive and inductive reasoning. Now what are deductive and inductive reasoning? Deductive reasoning क्या है, वो conclusively support करती है किसी भी argument को. Deductive reasoning क्या है, वो conclusively support करती है एक argument को, whereas जो inductive reasoning होती है वो probability के basis पे होती है. कि अब वो probability के basis पे कैसे होती है, जो premises होते हैं वो basically किसी भी नई चीज को डिस्कवर करते टाइम, कोई भी जो नए फैक्ट्स को डिस्कवर करता है वहां पे प्रोबेबिलिटी चलती है, राइट? जहां पे हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा ना लेकर हम सैंपल पॉपुलेशन लेते हैं, सैंपल साइज लेते हैं पॉपुलेशन का, और उससे अपनी अजम्पशंस, प्रोबेबिलिटीज इन्फर करते हैं. तो अगर मैंने सैंपल साइज से कोई भी बात इन्फर करी है, या तो वो जो प्रमाइसेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा. तो डिडक्टिव में प्रेमाइसेस क्या होती है, अगर प्रेमाइसेस ट्रू हुई तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा. वेराज अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे प्रेमाइसेस स्ट्रॉन्ग या फिर वीक होते हैं. अगर वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इट मे बी वैलिड और इनवैलिड, बट इफ द प्रेमाइसेस इज वीक ऑन द फेस ऑफ इट तो वो इनवैलिड माना जाएगा, राइट? और कंक्लूजन भी क्या होगा, कंक्लूजन में भी ट्रू. लेकिन डिडक्टिव में क्या है, प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, ठीक है? डिडक्टिव में क्या है, ये जनरल प्रेमाइस से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड चाणक्य इज अ ह्यूमन. तो सारे जो ह्यूमंस हैं वो मॉर्टल हैं और चाणक्य एक ह्यूमन है. तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि चाणक्य एक मॉर्टल बीइंग है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, प्रेमाइसेस यहाँ पे ट्रू हैं तो इसलिए कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा 110%. वेराज इन इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा, यहाँ पे प्रेमाइसेस आती हैं, ठीक है? यहाँ पे तीन प्रेमाइसेस हैं, P1, P2 एंड P3. अब यहाँ पे इन्होंने सैंपल साइज लिया कि चाणक्य एक मैन है और हमने दो लोगों को ऑब्जर्व किया, सुरेश और रमेश को. सुरेश और रमेश दोनों मैन हैं और दोनों ही मॉर्टल हैं. क्योंकि सुरेश और रमेश मॉर्टल हैं तो हमने मान लिया कि चाणक्य भी मॉर्टल है. तो देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, कि यहाँ पे सैंपल पूरा पॉपुलेशन ना लेके एक सैंपल साइज लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज रहती हैं. और इंडक्टिव रीजनिंग एक तरीके से प्रैक्टिकल भी है और ये अप्लाई होती है सोशल साइंसेज रिसर्च में. वेराज डिडक्टिव इज लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि A + B = C ऐसे करके. तो ये मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में वहां यूज होती है डिडक्टिव रीजनिंग. अब डिडक्टिव रीजनिंग मैंने बताया कि जनरल से स्पेसिफिक मूव होती है और इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल होती है. अब यहाँ पे स्पेसिफिक था ना कि चाणक्य मैन है, सुरेश भी एक मैन है जो मॉर्टल है, रमेश मैन है एक मॉर्टल है. तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक आइडिया है, एक स्पेसिफिक इन्फ्रेंस है, ठीक है? एक स्पेसिफिक फैक्ट है, एक स्पेसिफिक क्लेम है, एक स्पेसिफिक एविडेंस है. इन स्पेसिफिक चीजों को हमने एक जनरल इन्फ्रेंस बनाया कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल या फिर चाणक्य इज अ मॉर्टल. वेयरएज अगर हम डिडक्टिव में देखें, ये क्या करता है, स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक में जाता है. अब जनरल से स्पेसिफिक में कैसे जाता है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, कितना बड़ा साइज लिया, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई. चाणक्य इज अ ह्यूमन, चाणक्य इज अ मॉर्टल,
ठीक है। तो डिडक्टिव मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, वेयर एज इंडक्टिव मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि प्रेमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, वेयर एज इंडक्टिव में प्रेमाइसेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो वैलिड या इनवैलिड होगा, लेकिन अगर प्रेमाइसेस वीक है तो वो इनवैलिड होगा। जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, वेयर एज इंडक्टिव रीजनिंग इज अ बॉटम्स अप अप्रोच, राइट। अब टॉप डाउन अप्रोच कैसे है, वो ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे कैसे कि एक थियरी है, उस थियरी को टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कैसे कि उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, ऑब्जर्व किया और उसको कंफर्म किया कि हाँ ये सही है। थियरी क्या है, थियरी ये है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और हाइपोथेसिस से कैसे टेस्ट किया कि चाणक्य को लिया है कि चाणक्य इज अ ह्यूमन। तो हमने चाणक्य को ऑब्जर्व किया और ऑल ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया और हमने कंफर्म किया कि जो चाणक्य है वो मॉर्टल है, ऑल ह्यूमन चाणक्य क्या है, मॉर्टल है। वेयरएज तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, थियरी को टेस्ट किया, हाइपोथेसिस में ऑब्जर्व किया और फिर कंफर्म किया, कंक्लूड किया। वेयरएज बॉटम्स अप अप्रोच इन इंडक्टिव रीजनिंग, बॉटम्स अप अप्रोच में क्या है, थियरी यहाँ पे बॉटम से शुरू करेंगे, सबसे नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व किया कोई फैक्ट क्या ऑब्जर्व किया कि चाणक्य एक ह्यूमन है और सुरेश भी एक ह्यूमन है जो मॉर्टल है और रमेश भी एक ह्यूमन है जो मॉर्टल है। अब रमेश और सुरेश को हमने ऑब्जर्व करते हुए हमने चाणक्य को भी मॉर्टल मान लिया। तो ऑब्जर्वेशन, फिर हमने पैटर्न ड्रॉ किया, टेंटेटिव हाइपोथेसिस ड्रॉ करी और फिर हम थियरी पे आ गए, हमने थियरी एस्टैब्लिश करी। टॉप डाउन अप्रोच में डिडक्टिव रीजनिंग में ऑलरेडी थियरी एग्जिस्टिंग है, उसको हमने टेस्ट किया। वेयरएज इंडक्टिव रीजनिंग में हमने ऑब्जर्वेशन के न्यू फैक्ट्स को लेकर आए, हमने उन न्यू फैक्ट्स को का पैटर्न बनाया, हाइपोथेसिस बनाई और एक थियरी बनाई, एक नई थियरी बनाई। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो एक ए प्रायोरी इन नेचर है। अब ए प्रायोरी क्या मतलब होता है, प्रायोर, ए प्रायोरी में प्रायोर वर्ड पे ध्यान दो। प्रायोर मतलब है कि प्रायोर नॉलेज, पहले से जो एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है, ठीक है। तो डिडक्टिव क्या है, ए प्रायोरी इन नेचर है, वो एस्टैब्लिश फैक्ट्स को टेस्ट करती है, हाइपोथेसिस उसका लेती है, उसे उस थियरी को टेस्ट करती है कि वो सही है कि नहीं है। तो ये चीज है। तो प्रायर नॉलेज पे एस्टैब्लिश्ड है, ना कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे। सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे कौन है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे इंडक्टिव रीजनिंग है, वो न्यू फैक्ट्स लेकर आती है। बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। न्यू फैक्ट्स जहां पर है वहां पे थियरी एस्टैब्लिश की जाती है, और जहां प्रायर नॉलेज है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। तो इससे आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो पोस्टीरियोरी इन नेचर, ये बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग पोस्टीरियोरी इन नेचर है। इट इज बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, ना कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स पे। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और इसे आफ्टर एक्सपीरियंस नॉलेज भी बोलते हैं। आफ्टर एक्सपीरियंस नॉलेज कैसे हो गई कि पहले एक्सपीरियंस किया फिर नॉलेज आया, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड, वेयरएज हम इंडक्टिव रीजनिंग को स्ट्रक्चर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसमें न्यू फैक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं, हम पैटर्न बना रहे हैं, हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हम थ्योरी एंड में थ्योरी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अलाउज एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। Deductive reasoning relies on structured form like syllogism, whereas inductive is not bound by specific form. तो अब आपको पता है कि syllogism is a part of deductive reasoning. Deductive is independent of empirical data. Independent मतलब empirical data पे dependent नहीं है, ठीक है। Whereas inductive reasoning relies on empirical data या फिर empirical observations. डिडक्टिव रीजनिंग इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल नॉलेज हो गई। और
इंडक्टिव क्या है? वैल्यूएबल वेयर सर्टेनिटी इज लैकिंग, जहां पे सर्टेनिटी नहीं है उस चीज को सर्टेन करने के लिए इंडक्टिव रिसर्च की जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। ये कहाँ अप्लाई करती है? सोशल साइंस पे, वेयर एज डिडक्टिव जो है मैथमेटिक्स पे अप्लाई करती है, और फिलोसफी और साइंस, राइट, साइंस एंड फिलोसफी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर today's video. I hope you like this session. If you have any doubt or any doubt, you can ask me in the comment section below. If I think कि हाँ अभी भी there are doubts, there are explanations which are left in this topic, I will surely make a video in this deductive and inductive reasoning part 2 अगर जरूरत पड़ती है. So I hope you understood this topic. So kindly like this video, like, share and subscribe this video, and for any feedback you can comment down below in the comment section. Thank you and have a good day.